everyone. So today we will going to start the new chapter, and the name of the chapter is Congo, the Democratic Republic. So let's begin the chapter. Chapter 6, Congo, the Democratic Republic. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn about location, wildlife, life of the people, climate, agriculture, transport, vegetation, and industry. So in this chapter, we're going to know about the location, wildlife, and climate, agriculture, ये सब कैसा होता है, that we're going to know. But before starting the chapter, we have to do a small activity, build up. These countries lie in the equatorial region. Rearrange the letters to get their names, write them in the blanks. तो अब ये हमारे को जो इन वर्ड्स को अरेंज करना है और कंट्रीज के नेम को बताना है. So the first one here is Panama. Second here is Sri Lanka. Third is Kenya. Fourth is Malaysia. This is next to Germany. And here comes Cameroon. Now let's start. The Democratic Republic of Congo was earlier known as Zaire. It is the third largest country in Africa. Its capital is Kinshasa. अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको अर्लियर पहले कहा जाता था जायरे, ये तीसरी लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की और उसकी कैपिटल है किनशासा. इट लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन में लाई करती है एंड द इक्वेटोरियल रीजन लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर एंड हैज अ हॉट एंड वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑलमोस्ट थ्रू द. इक्वेटोरियल रीजन जो है वो दोनों साइड्स पे रहता है इक्वेटर की, और उसका जो वहाँ का क्लाइमेट रहता है बहुत ही गर्म और ह्यूमिडिटी वाला रहता है पूरे साल. फैक्ट ट्रेजर. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वंस हैड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ हिप्पोपोटेमस. ड्यू टू पोचिंग दे आर नाउ फेसिंग एक्सटिंक्शन. अब उधर जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है, एक बार वहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी हिप्पोपोटेमस की, और पोचिंग की वजह से, हंटिंग की वजह से अब वो ख़त्म होते जा रहे हैं. Now comes location. Look at the map of Democratic Republic of Congo. Congo का मैप देखेंगे, you will see that the equator runs through its north. It is surrounded by the 9 countries. अब इसका जो इक्वेटर है वो नॉर्थ से जाता है और वो 9 कंट्रीज से सराउंडेड है. The names of these countries are, कौन कौन सी कंट्रीज है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सुदान इन द नॉर्थ, उगांडा, रवांडा, टांजानिया, बुरुंडी in the east, Republic of the Congo in the west, Zambia and Angola in the south, and one of the most important features of Democratic Republic of Congo is the Congo River, which is the second largest river in Africa. तो ये सारी कंट्रीज है जो उसकी नेबरिंग है. और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर वो ये है कि जो रिवर है जो वहाँ की, वो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका में. कॉन्गो रिवर इज ऑल्सो नोन एज जायरे रिवर. इसको जायरे रिवर भी कहा जाता है. Can you name the longest river in Africa का longest river? The Congo River is called the Highway of Central Africa. Congo River को Highway of Central Africa भी कहा जाता है. Lake Albert, Lake Kivu, Lake Edward and Lake Tanganyika are the major lakes of this country. इस जगह की famous lakes के name है ये. Climate. As the Democratic Republic of Congo is located near the equator, it is as hot and wet climate throughout the year. जब equator के पास है तो वहाँ का climate obviously गर्म रहता है. Mornings are quite pleasant, but at noon at the temperature are high. सुबह के टाइम थोड़ी ठंडक रहती है, लेकिन दोपहर को वहाँ पर बहुत गर्मी रहती है. टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज बिटवीन 30 to 35 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर दिन में रहता है. इन द आफ्टरनून्स देयर इज अ हैवी रेनफॉल फॉर अ शॉर्ट पीरियड. और कई बार दोपहर को भारी बारिश भी हो जाती है. इवनिंग्स एंड नाइट्स आर कूलर. रात और शाम ठंडे होते हैं. वेजिटेशन. Most of the Democratic Republic of Congo is covered with rainforest. ज़्यादातर जो एरिया है वहाँ का वो रेन फॉरेस्ट से कवर है. The trees in these forests grow very tall and form a canopy which prevents sunlight from reaching the ground. जो पेड़ हैं यहाँ के फॉरेस्ट के, यहाँ के जंगल के, वो बहुत ही लंबे लंबे हैं और वो एक कैनोपी की तरह काम करते हैं, तो सनलाइट को ग्राउंड तक नहीं पहुँचने देते. तो वो शेड का भी काम करते हैं और सनलाइट, सन की डायरेक्ट रेज को से पड़ने से भी बचाते हैं ग्राउंड पर. तो देयर इज अ डेंस ग्रोथ ऑफ क्रीपर्स एंड श्रब्स. और घने जंगल है
बहुत ही घने क्रीपर्स और श्रब्स वहाँ पर मिलेंगे। अ स्पेशल फीचर ऑफ द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट इज दैट देयर एवरग्रीन, और यहाँ का स्पेशल फीचर इन फॉरेस्ट का ये है कि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। योर वाइज, डू यू थिंक इट इज राइट टू कंडक्ट जज सफारी जंगल सफारीज एज इट डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स? तो जंगल सफारी जो होती हैं जिस पर लोग करते हैं, वो होनी ज़रूरी है? क्या वो सही है? क्या वो नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब नहीं करती या फिर करती है? इन सम पार्ट्स वेयर द क्लाइमेट इज नॉट सो हॉट एंड वेट द वेजिटेशन इज डिफरेंट। कुछ जगहें ऐसी होती हैं वहाँ पर जहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा ज़्यादा गर्म भी नहीं होता और वेजिटेशन भी अलग होती है। Here, grasslands with short trees are found. तो यहाँ पर ना छोटे छोटे पेड़ के ग्रासलैंड्स वहाँ पर मिलते हैं, एंड द ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड सवाना ग्रासलैंड्स कहा जाता है। देन कम्स वाइल्ड लाइफ। द डेंस फॉरेस्ट प्रोवाइड एन एक्सेलेंट शेल्टर फॉर एनिमल्स। अब जितने घने जंगल होंगे उतने जानवरों के लिए अच्छा हाउस होगा। गोरिल्लाज, चिंपैंजीज एंड बैबून्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। ये सारे जानवर जो है वहाँ मिलते हैं। इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स। इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स भी सब मिलेंगे वहाँ पे, जैसे क्रोकोडाइल्स हो गए, फ्रॉग्स, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स वहाँ पर होते हैं। रेप्टाइल्स इंक्लूड स्नेक्स, पाइथन्स, क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स एंड हिपोपोटामस आर फाउंड इन स्वैम्प्स एंड रिवर्स। क्रोकोडाइल्स और हिपोपोटामस बहुत ज़्यादा मिलेंगे वहाँ, पानी में भी, नदी में भी। एंड ओकापी, अ हॉर्स लाइक एनिमल्स इज ऑल्सो फाउंड हियर। वहाँ पे एक घोड़े जैसे मुंह का जो है एनिमल वहाँ पर है, उसका नाम है ओकापी। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज ऑफन कॉल्ड द नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। इसको एक नेचुरली जू भी कहते हैं। नेचुरल जू मतलब यहाँ पे इतने सारे जानवर हैं कि ये अपने आप में ही एक जू की तरह लगता है। एग्रीकल्चर, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर फार्मिंग एंड माइनिंग। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग और माइनिंग। फार्मर्स प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। फार्मर्स क्या प्रैक्टिस करते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इन दिस सिस्टम सम फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड एंड क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर 2-3 ईयर्स। तो इसमें क्या होता है, कुछ फॉरेस्ट का लैंड को क्लियर कर दिया जाता है, क्रॉप्स को 2-3 साल के लिए, मतलब वो लैंड पे कुछ नहीं ग्रो करते, उससे ऐसे ही छोड़ देते ताकि वो फर्टाइल हो जाए, दोबारा से अपने आप को ठीक कर ले। क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर कसावा, मेज एंड राइस। क्रॉप्स वहाँ ग्रो की जाती हैं। कसावा इज दी स्टेपल फूड, मतलब मेजर फूड है वहाँ के लोगों का। कसावा प्लांट हैज़ अ लॉन्ग और फ्लैशी रूट्स और ट्यूबर्स अंडर द ग्राउंड। दिस इज द कसावा इज द स्टेपल फूड ऑफ पीपल, यहाँ के लोगों का, कॉन्गो का। ये बहुत ही लंबा, देखो कितना लंबा है, और बहुत ही फ्लैशी रूट्स होती हैं, इसकी जो जड़ होती है वो बहुत ही फ्लैश होता है उस पर, और अंडरग्राउंड के नीचे मिलती है। एंड द ट्यूबर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर से निकाला जाता है, एंड सोक्ड इन वाटर फॉर मैनी डेज, और पानी में डुबो के रखा जाता है काफ़ी देर तक। देन द स्किन इज पील्ड ऑफ। फिर पानी में भिगोने के बाद उसको जब निकाला जाता है तो उसकी स्किन को पील, जैसे आलू को उबाल के हम उसको बॉईल, जब आलू को करते हैं फिर उसके छिलके को उतारते हैं, इजीली उतर जाता है। इसी तरीके से इसको भी पानी में लोग भिगो कर रखते हैं और फिर इसको पील करते हैं। द ट्यूबर्स आर ड्राइड एंड फ्लावर इज मेड फ्रॉम देम। फिर वो सुखाकर उसका आटा बनता है। कैश क्रॉप्स सच एज पाम ऑयल, कोको, कॉफी एंड रबर आर ग्रोन फॉर एक्सपोर्ट पर्पज के लिए रबर, कॉफी भी ग्रो करते हैं। इंडस्ट्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज रिच इन मिनरल्स लाइक गोल्ड, डायमंड, मैंगनीज, कॉपर, कोबाल्ट, यूरेनियम एंड कोल। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बहुत ही फेमस है मिनरल्स के लिए, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, मैंगनीज, ये सारे मिनरल्स यहाँ मिलते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट एंड इंडस्ट्रियल डायमंड्स इन द वर्ल्ड। तो कोबाल्ट और इंडस्ट्रियल डायमंड्स जो होते हैं उनका प्रोड्यूसर है बहुत बड़े। इंडस्ट्रीज आर नॉट वेल डेवलप्ड हेयर, सो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड। यहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं है, तो ज़्यादातर जो मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है बाकी कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ है। तो नंबर ऑफ डैम्स हैव बीन बिल्ड। डैम्स बहुत सारे बनाए गए हैं। दे प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के। लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज थिनली पॉपुलेटेड। बहुत ही थिनली पॉपुलेटेड जगह है ये, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन कम है। दो अ नंबर ऑफ ट्राइब्स लिव हेयर, बंटू इज द लार्जेस्ट ट्राइब। बहुत सारी ट्राइबल पीपल हैं, ट्राइब्स हैं यहाँ पर बंटू वहाँ की लार्जेस्ट ट्राइब है। द बंटू पीपल आर टॉल एंड हैव कर्ली हेयर। वो बड़े लंबे होते हैं और उनके कर्ली हेयर्स होते हैं। पाइगमीज आर प्रिमिटिव ट्राइब हु लिव इन डेंस फॉरेस्ट। ये जंगलों में रहने वाले हैं। पाइगमी फैमिलीज ऑफन लिव टुगेदर शेयरिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पाइगमी ट्राइब्स हैं, ये बहुत ही पुराने समय से यहाँ रहते आ रहे हैं जंगलों में। दे आर शॉर्ट इन हाइट, हाइट में छोटे होते हैं। देयर एवरेज हाइट इज लेस देन 1.5 मीटर, मीन्स 5 फुट, 5 फीट से भी कम इनकी हाइट रहती है, इनकी एवरेज हाइट ज़्यादातर लोगों की।
दे गैदर फूड बाय हंटिंग, हंटिंग करते हैं, जानवरों को मारते हैं। दे हैव प्रिमिटिव लाइफस्टाइल, वो आज भी पुराने तरीके से ही चलते हैं। दे मेक हट्स ऑफ आउट ब्रांचेस एंड लीव्स, पत्तों से और टहनियों से वो अपनी घर बनाते हैं। एज द वेदर इज हॉट एंड ह्यूमिड द पीपल डू नॉट वियर मेनी क्लोथ्स, गर्मी रहती है तो वो कपड़े भी नहीं पहनते वहाँ ज़्यादा। द पीपल एंजॉय सिंगिंग एंड डांसिंग, उन्हें डांस करना, गाना गाना बहुत पसंद है। ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कॉन्गोज ज़ायरे रिवर इज द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उनका चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही ज़ायरे रिवर है। Matadi is the main seaport and Kinshasa, the capital of Democratic Republic of Congo, is an important river port. मटाडी वहाँ का मेन सी पोर्ट है और किंशासा जो कैपिटल है उस कंट्री की वो एक इम्पॉर्टेंट रिवर पोर्ट है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज डेवलपिंग फास्ट, अब वो डेवलपमेंट की तरफ चल रहा है। लेट्स टू वर्ड्स टू रिमेंबर। Evergreen trees, trees that remain green throughout the year, and equatorial region is the region on both sides of the equator. Let us recall. Democratic Republic of Congo is located in the equatorial region. It has a hot and wet climate. Most of the Democratic Republic of Congo is covered with rainforest. Democratic Republic of Congo is rich in mineral resources. Democratic Republic of Congo is called the natural zoo of the world. Tribals are the major population groups of the Democratic Republic of Congo. And main crops are cassava, rice, maize, rubber, coffee, cocoa, palm oil, and cotton. And Congo River is the most important means of transport in the country. Now let's do think and answer. Take the correct option. Capital of Democratic Republic of Congo is Kinshasa. Democratic Republic of Congo is called the dash of the world, natural zoo. Which is the main seaport in the Democratic Republic of Congo? That is Matadi. The staple food of people of the Democratic Republic of Congo is cassava, and the important line of latitude which passes through the Democratic Republic of Congo is equator. Now let's do fill in the blanks using the words given in box. The Democratic Republic of Congo is the dash largest country in Africa. Third, it is the largest producer of cobalt and industrial diamonds in the world. Most of the Democratic Republic of Congo is covered with rainforest. Vegetation consisting of grasslands with short trees is called savanna. And the equator passes through the north part of the Democratic Republic of Congo. Now let's take the correct and cross the incorrect statement. Trees found in rainforest grow very tall, correct. Democratic Republic of Congo exports most of its minerals, correct. Pygmies have a modern lifestyle, false. Democratic Republic of Congo has a rich wildlife, correct. Congo River is not the most important means of transport in the country, wrong. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and we'll meet in the next video with the next chapter. Then bye bye. Take care. Thank you.